टीमें बने, इनके साथ इनके काउंसलर्स काम करें। ठीक होगा, ठीक। आपके काउंसलर्स भी मौजूद हैं, राहील, ज़ारा, रबिया? जी बिल्कुल है, अगर आप चाह रहे हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि वो ज्वाइन कर लें। हाँ, दे शुड ज्वाइन तो करें, इनविजिबल ज्वाइन कर लें, लेकिन ज्वाइन करें। कैसे जा रही है एडमिशन? बिजी जा रहा है आपका? सर बहुत बिजी जा रहा है। अच्छा, बहुत बिजी। कोई उसमें आपको पता है कि जून और जुलाई जो है मेन जो है मंथ है, इसमें स्टूडेंट्स के एडमिशन हैं, एप्लीकेशन है, कैश है, तो ये चल रहा है। आई थिंक वी आर लाइव नाउ। जी। शोएब आप स्टार्ट करें, वी आर लाइव नाउ। आप इंट्रोड्यूस करवाएं ना प्लीज। Right. Assalamualaikum everyone. My name is Shoaib Shirazi and I'm representing Canterbury Christchurch University today with the KBM consultants. So we would like today to discuss about the university, what program which universities offering in September intake, what we can offer you in September, what our scholarship can give given to you. So I will go through today's presentation about Canterbury Christchurch University, and then we will discuss about more in your question and answer session. Let me share my screen. Yeah. So can you see my screen, Rabia? Rabia, can all right? Thank you. So about the Canterbury Christchurch University, it's a public university located in Canterbury, Kent. It was a college in 1962, and it was granted as a university in 2005. As you know that the United Kingdom has always been one of the most welcoming destination for the international students, and it has even become more attractive with the introduction of new student policies. So this is the ideal time for the student to apply in September intake. So we will discuss that what program university is offering. So we are offering more than 250 to 300 programs in undergraduate and postgraduate programs. The university has about 17,000 students already who are enrolled in our university. About the Canterbury is ranked as the #1 city in the UK to start up a new business. So it's a tourist area, a historical city. Kent is very famous for the county cricket club for international for Pakistani lovers who are playing cricket. So this is the thing that उनको बहुत ज़्यादा attract करता है. It's area that's the Canterbury. Let's talk about the university. Why you studying in this university? The first thing is that the university is offering very wide, unique programs. We have very unique program. Then diversity. We have 80 country students who are studying in our university. So multicultural environment you will be experiencing in this university. So this is the main thing is that diversity. We have 80 country students. If we talk about the rating, so university has silver rated in teaching excellence. If we discuss about the high employability, so the university as a top 10 in the UK for the employability. And because of that, we have a teaching faculty that is very experienced. That is the top 20 in the UK for the qualified teaching staff. If we discuss about the requirements in the university, the entry requirement is very flexible. And if you talk about the distance from London, because everyone has a dream to live in London, but the living cost in London is very expensive. So you can
to outside of London, so that it's approximately 1 hour away from London by high-speed train. So it's ideal location for students. Then job opportunity is the main focus for students. So it's a tourist area, as I mentioned. So there's a lot of opportunities are available in Kent area. Let's discuss about the Kent. Why Kent is famous? First of all, Kent is very famous for the County Cricket Club as a Pakistani lovers. Then we have other things that it's have a stunning beaches, about 50 plus beaches available in this area. They have a fascinating history. It's a 100-year plus historical city, so tourists are visiting this area. So a lot of opportunities are available for the international students in this area, because the shopping malls are also here, exciting festivals are being held in everywhere. So these are the things that are attracting to live in Kent. So as mentioned, Kent is the south or east of England, and is called as a Garden of England. So this is the an area where you will be living in Kent. Let's talk about the program intakes. The campuses we have three campuses to recruit international students. Canterbury, that is the main campus, which is in Kent. Second is a Midway, and third is the Tunbridge Wells. So right now we are recruiting in two campuses, which is one is a Canterbury and the second is a Midway. So as mentioned, the area is a gateway for the UK and Europe. So this is the very ideal location again for students to study in both campuses, that is Canterbury and Midway. I will discuss more about the campuses, where campuses are located. So the main campus, that is our campus, Canterbury, is located in heart of city Canterbury. If you talk about the location and travel, so Canterbury West Station is less than an hour from London. And discuss about the airport, so London City and Gatwick, the airport which connects to travel to Kent, as well as the attraction is that Canterbury cathedrals, canals, old England sceneries, friendly locals are shopping malls, and also we talk about the university facilities. We have a campus cafe, library, paro rooms, laptops, iPads, iZones for the students, and also we have sports facilities for them, sports facilities such as like tennis, snooker, volleyball, and the yoga as well. So if we talk about the Midway campus, in the Midway campus, we are only recruiting students for the health related programs. So it's a main campus which we are offering for the health students. The main location, that is the Rochester station from London, and the attraction is that there is cinema, students hall, library. तो ये ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए हैं. इसके अलावा कैंपस फैसिलिटीज हैं, टॉप ऑफ द रेंज फैसिलिटीज है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए. आई जोन्स हैं, लाइब्रेरी रूम्स हैं. तो दीज आर द अट्रैक्शन फॉर स्टूडेंट टू लिव इन मिडवे कैंपस. मैं थोड़ा सा कैंपस को आपको मैप के थ्रू दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए. तो आप देख सकते हैं लंदन से जो नियरेस्ट कैंपस है मिडवे है. अब मिडवे के साथ कैनबरी कैंपस है, और देन अगर आप इसको बाउंड्रीज देखते हैं यूरोप की, तो फ्रांस इसको टच करता है. तो ये एक आइडियल ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए. अगर आप आउटसाइड ऑफ लंदन देखते साउथ ईस्ट इंग्लैंड की तरफ आप अगर इंटरेस्टेड हैं टू स्टडी इन कैनबरी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. There are some picture in you can see we have huge campuses, individual classes room है, library rooms हैं students के लिए. So इसके अलावा आई zones हैं. So lot of attraction for students के आप individual कर सकते हैं. University accommodations हैं campus के अंदर. So these options are available for students. And we have a student union, sports and fitness club. So arts and culture also available in our university life. Let's talk about the program. We are offering wide range of program. जैसा mention किया था, इसमें हमारे पास जो disciplines है, arts and business है, business management है, engineering programs है, health and sciences program है, humanities है, media है, medicine है, social sciences program है. So a lot of programs are available in undergraduate degree. So let's discuss about the program and entry requirements. We are offering one program, that is international foundation year. International foundation year program students के लिए हमने डेवलप किया जिनके दे हैव अ लो स्कोर इन इंग्लिश. दे कैन
दे वांट टू स्टडी इन यूके बट वो उनके मार्क्स कम है, जैसे कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास हायर सेकेंडरी स्कूल में 45 to 50% मार्क्स हैं, दे कैन अप्लाई इन आवर प्रोग्राम दैट इज स्टैंड अलोन प्रोग्राम दैट इज 10,000 fee after discount, and we are accepting students with the 45 to 50% marks that who are having a in intermediate, and IELTS requirement that is a 5.0 not less than 4.5. तो ये एक आइडियल प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर में। और इसका मेन प्रोग्राम ये है कि आप ये प्रोग्राम स्टडी करें, देन आप प्रोग्रेस कर सकते हैं बैचलर डिग्री में। किसी भी डिसिप्लिन में आप स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे पास जैसे कि प्रोग्राम्स की वैरायटी है, तो आप उसके बाद ये बैचलर डिग्री आप कर सकते हैं। देन हमारे पास प्रोग्राम की वैरायटी है कंबाइंड कैस की, जिसे आप 4 इयर्स की डिग्री कहते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं वो आगे जाना चाहते हैं, ज़्यादा ड्यूरेशन में जाना चाहते हैं, तो वी हैव अ ड्यूरेशन दैट इज 4 इयर्स। The entry requirement is very flexible again, 55 to 60% marks इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, as well as अगर स्टूडेंट्स के पास फाउंडेशन, इसकी जो फाउंडेशन की फी है that is very attractive, very nominal fee, that is 9,910 pound, और देन बैचलर की जो फी है दैट इज 13,000। अगर आप मार्केट में देखते हैं और यूनिवर्सिटीज को, तो बहुत ही कम फी है हमारे पास जो फाउंडेशन की फीस है, और आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं, डिस्काउंटेड फी है। और आप जो IELTS की रिक्वायरमेंट दैट इज 5.5 ओवरऑल, इंग्लिश कंपोनेंट 5.5। यहाँ पर किसी स्टूडेंट के पास IELTS B2 लेवल है तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस 4 इयर्स की डिग्री में, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जो कि डायरेक्ट एंट्री है अंडर ग्रेजुएट के लिए, जो कि आपको मोस्टली आइडिया होता है 3 इयर्स अंडर ग्रेजुएट की डिग्री की ड्यूरेशन होती है। अगर आप प्लेसमेंट के साथ अप्लाई करते हैं तो वो 4 इयर्स की हो जाती है। तो वी हैव प्लेसमेंट प्रोग्राम एज वेल फॉर यू, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो डिग्री है दैट इज 3 इयर्स। our entry requirement for the direct entry is that कि आपके पास 70% इंटरमीडिएट में मार्क्स होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट बैचलर के लिए। इसके अलावा ए लेवल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, दे हैव 3 Bs इन ए लेवल, और उनका अगर इंग्लिश में ओ लेवल में सी ग्रेड है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ए लेवल के स्टूडेंट्स को हम IELTS एग्जाम कर देंगे। देन वी हैव अ डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग कोर्स स्टूडेंट्स हैं जो DAE किया होता है लेकिन उनको यूनिवर्सिटी से एडमिशन नहीं देती या उनको बहुत मुश्किल होता है, तो वी हैव प्रोग्राम्स अवेलेबल फॉर देम, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, बिल्डिंग सर्विसेज है। तो अबाउट 10 प्लस प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं फॉर द DAE स्टूडेंट्स एंड दे कैन अप्लाई डायरेक्टली फॉर द अंडरग्रेजुएट डिग्री। इसमें जो हमारे पास IELTS की रिक्वायरमेंट है दैट इज 6, इंग्लिश कंपोनेंट 5.5, तो इसके लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आजकल सेंटर्स बंद हैं, तो आप इसके अलावा आप हमारे पास इंटरनल टेस्ट जिसे हम पासवर्ड स्किल्स टेस्ट कहते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें आपको थ्रू KBM कंसल्ट करें, वो आपको गाइड कर देंगे कि किस तरह वो प्रोसेस किया जा सकता है। तो ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बारे में मैंने आपको गाइड किया है। तो बहुत ही नॉमिनल फीस है, बड़ी फ्लेक्सिबल है। आप सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आइडियल टाइम फॉर यू। अगर वो स्टूडेंट जिनके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री में मार्क्स तो अच्छे होते हैं लेकिन उनके IELTS लो होता है, तो उनके लिए हमने प्री सेशनल प्रोग्राम डिजाइन किए हैं जो कि 10 वीक्स का है और 6 वीक्स का है। जो 10 वीक्स का प्रोग्राम है अभी जून में स्टार्ट हो चुका है, टुडे हम उस क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो नहीं अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन जो 6 वीक्स का प्रोग्राम है वो भी अवेलेबल है, और अगस्त में इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसकी फी दैट इज अगेन नॉमिनल 2100, और ये स्टूडेंट्स प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद बैचलर डिग्री स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मेन प्रोग्राम हमारा सितंबर में है। तो ये इस गुड के उनको फाउंडेशन नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो डायरेक्ट बैचलर में जाके अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट 6 वीक प्री सेशन पढ़े हैं, अपने लैंग्वेज स्किल्स को इंप्रूव करें, एंड देन दे कैन अप्लाई फॉर द डायरेक्ट प्रोग्राम दैट इज अंडर ग्रेजुएट डिग्री। सो देन वी विल डिस्कस अबाउट द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। मोस्टली प्रोग्राम जो कि यूके में होते हैं मास्टर डिग्री से, वो 1 ईयर की डिग्री होती है, लेकिन अगर आप प्लेसमेंट के साथ करते हैं तो आपको 14, 16, 18 मंथ्स का जो कुछ यूनिवर्सिटीज आपको ऑप्शन दे देती हैं प्लेसमेंट के साथ। तो राइट नाउ एज यूके 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क दे रहा है आपको, तो इसलिए हमारे पास जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो 1 ईयर के हैं, और उसमें हमारे पास यूनिवर्सिटीज की इंटर्नशिप्स हैं, हमारे पास MOU साइन है कंपनीज के साथ, जैसे कि IT के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हम और भी सपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए जो प्रोग्राम्स हम ऑफर कर रहे हैं उसमें
IT से related programs हैं. You can see the program list. We have MSc Advanced Manufacturing System and Technology. ये प्रोग्राम इसको जो कि STEM डिग्री है, इसको IT स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है. They can develop their skills while studying in UK. इसके अलावा इसमें हमारे पास स्पेशलाइजेशन है रोबोटिक्स में. इसके अलावा डाटा साइंस है, MSc डाटा इंटेलिजेंस है, गेम डिज़ाइन है. अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो विजुअल कम्युनिकेशंस में जा सकते हैं, गेम डिज़ाइन में जा सकते हैं, क्रिएटिव एंड कल्चर इंडस्ट्री में है. इसके अलावा आप अगर पॉलिटिक्स में है, दैट्स वी हैव MSc पॉलिटिक्स फॉर देम. और जो हमारा प्रोग्राम MSc पॉलिटिक्स है ये गार्डियन में 9th में आता है. तो इस प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा डिमांड है इस यूनिवर्सिटी में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. लॉ से रिलेटेड प्रोग्राम्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि स्टूडेंट्स को ऑप्शन नहीं देती. तो LLM आल्सो अवेलेबल. हमारा एक सेशन हो रहा है 17 जून को. एक वेबिनार है, आप लोग उसमें अटेंड करें थ्रू KBM. तो उसमें हम आप एक जो यूनिवर्सिटी के डेडिकेटेड प्रोफेसर हैं वो इस वेबिनार पर इंफॉर्मेशन देंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. हमें इसके अलावा टीचिंग से रिलेटेड जैसे टीचर्स हमारे पास हैं, उनको अगर अपना कैरियर डेवलप करना चाहते हैं तो वी हैव अ टीचिंग प्रोग्राम फॉर देम. हमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, हमें इंग्लिश लिटरेचर फॉर देम. और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है जिसकी डिमांड है, जिसमें यूनेस्को की डिमांड है कि इसमें अबाउट 8 मिलियन प्लस जॉब्स नेक्स्ट ईयर में की डिमांड से मार्केट में. तो हमें 300 प्रोग्राम उनके लिए डिज़ाइन किया गया है, तो वो दे कैन स्टडी इन आवर यूनिवर्सिटी. बिजनेस से रिलेटेड प्रोग्राम्स में हमारे पास MBA इंटरनेशनल है. बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, वो फ्रेश होते हैं और वो अप्लाई नहीं कर सकते दूसरी यूनिवर्सिटीज में. तो वी विल एक्सेप्ट फ्रेश स्टूडेंट्स. अगर उनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो दे कैन अप्लाई इन आवर MBA इंटरनेशनल. We have program that is also related to business, that is MSc International Business. तो ये दोनों प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए है, वो अप्लाई कर सकते हैं. और बहुत ही नॉमिनल एंट्री रिक्वायरमेंट्स है. 2nd क्लास डिग्री हमें पाकिस्तान से चाहिए होगी इन प्रोग्राम्स के लिए. 6 इन एज कंपोनेंट 5.5 अगर IELTS है तो अप्लाई कर सकते हैं एंड these 2 प्रोग्राम्स. इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम है MSc ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, MSc फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन साइकोलॉजी, एक्सरसाइज एंड हेल्थ साइंस. और इसके अलावा कुछ प्रोग्राम टूरिज्म से हैं. इसके अलावा हमारे पास एक प्रोग्राम है इंटरनेशनल रिलेशन. अगेन ये गार्डियन में टॉप 9th में आता है, तो आप इसमें कर सकते हैं. साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं, सो यू कैन सी द प्रोग्राम लिस्ट एज वेल. सो जो प्रोग्राम की फी है दैट इज अ वेरी नॉमिनल. आफ्टर डिस्काउंट द फी इज 13,000 राइट नाउ व्हिच वी आर ऑफरिंग इन आवर सितंबर इनटेक. तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं हमारे जुलाई के मिड तक, अगर आप सितंबर इनटेक के लिए करना चाहते हैं. सो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है. आप थ्रू KBM एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे और देन आपका एडमिशन प्रोसेस होगा. एडमिशन प्रोसेस बहुत क्विक है, 48 आवर्स में आपको कंडीशनल लेटर आ जाएगा. डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं, आपको आगे प्रोसेस होगा. तो दैट्स वेरी गुड इन आवर यूनिवर्सिटी. अकोमोडेशन इज मेन क्वेश्चन होता है जब आप कोई यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, या UK भी है आपसे पूछती है कि वेयर यू आर स्टेइंग व्हाइल स्टडीइंग इन UK. तो यू हैव टू नो वेयर यू विल बी स्टेइंग एंड यू नो दैट कि कहाँ और कौन सी जगह पे होंगे, कितना कौन से एरिया पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कितना डिस्टेंस होगा यूनिवर्सिटी से. तो वी हैव यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन आल्सो अवेलेबल इन कैंटरबरी एंड द मिडवे कैंपस. इसमें हमारे पास 6 टाइप्स की अकोमोडेशंस हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं ड्यूरिंग एडमिशन. और इसमें स्टार्टिंग होती है 117 पाउंड पर वीक से लेके 178 पाउंड पर वीक तक. तो वो हर एक बिल्डिंग के हिसाब से आप वो चूज कर सकते हैं. तो ये सेम मिडवे कैंपस की कुछ अकोमोडेशन की पिक्चर्स हैं, वो अवेलेबल हैं. तो इसमें एक डिपार्टमेंट है जो सपोर्ट करता है. बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन होते हैं सर क्या मुझे जॉब्स में या किसी इंटर्नशिप्स में हेल्प मिल सकती है. तो यस, हमारे पास डिपार्टमेंट है जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है. जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जिनके आउटस्टैंडिंग थिंग्स हैं वो करना चाहते हैं, तो डिपार्टमेंट है जो उनको सपोर्ट करता है यहाँ पर यूनिवर्सिटी में. तो दिस इज द थिंग व्हिच आई हैव शेयर विद यू. वी विल टेक योर क्वेश्चन एंड आंसर. सो राबिया, इज देयर एनी क्वेश्चंस? जी थैंक यू शुएब साहब. जी हम इस पे उससे करते हैं ब्रांच वाइज. वी विल स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस. वी कैन स्टार्ट फ्रॉम कराची. तो राहील आप अपने क्वेश्चंस करें, फिर हम वर्क या
जी शेब, आपने मेंशन किया था स्टार्ट में कि इंग्लिश टेस्ट के हवाले से जो प्री सेशनल है, क्या इंटरनल टेस्ट है? क्योंकि थोड़ा सा ज़रा आप बता रहे थे, सो आई वाज अंडरस्टैंड कि वो आपका कोई इंटरनल इंग्लिश टेस्ट है वहाँ पे, या प्री सेशनल ही ऑफर कर रहे हैं? प्री सेशनल में तो ये होता है कि मैंडेटरी होती है, आइल्स उसके पास होना ही चाहिए या ऑथराइज इंग्लिश टेस्ट होना चाहिए। तो इंटरनल ऑप्शन कोई मौजूद है आपके पास जिनके पास आइल्स नहीं है या नहीं करना चाह रहे हैं और वो इंटरनल डायरेक्ट टेस्ट करना चाह रहे हैं, जो क्लास का टेस्ट कहते हैं आप, उस तरह का कोई प्रोसीजर है सीसीयू में? रही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल आपको पता है सेंटर नहीं है, तो स्टूडेंट्स को इंटरनल की बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑप्शन देती हैं। तो हमारे पास पासपोर्ट स्किल्स टेस्ट है जो कि स्टूडेंट दे सकते हैं। इस टेस्ट का पर्पज ये होगा कि स्टूडेंट जहाँ बैठते हैं, जहाँ मर्जी आप टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं। इस टेस्ट की डिटेल्स मैं आपको थ्रू ईमेल शेयर कर दूंगा ताकि स्टूडेंट को शेयर कर सकें। तो ये टेस्ट जितना मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ, तो स्टूडेंट्स के लिए ईजी तो वो पास कर सकें। तो दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर देम कि अगर ऑनलाइन देना चाहते हैं। डुओलिंगो नहीं है? डुओलिंगो हम नहीं एक्सेप्ट करते, हम पीटी एक्सेप्ट करते हैं, आईएलटीएस इंडिकेटर और टोफल, ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए। एक चीज़ रिलेवेंट टू दिस क्वेश्चन, वो कहाँ पे, मतलब ऑनलाइन तो आपने कह दिया, कोई सेंटर है या वो घर बैठ के भी इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं? रहील, अगेन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वही स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्टूडेंट्स कहीं भी बैठ के दे सकते हैं, घर से देख सकते हैं, लेकिन उनका जो टेस्ट होगा वो इन्विजिलेट होगा और यूनिवर्सिटी इन्विजिलेट करेगी। तो ये टेस्ट जहाँ मर्जी बैठ के दे सकते हैं, अप टू देम। आपके ऑफिस में दे सकते हैं या घर से दे सकते हैं, नो इशू। थैंक यू फॉर योर आंसर। थैंक यू। एनी अदर? सर गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम जी शेफ, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मेरा ये सवाल है, वी हैव अ स्टूडेंट हियर, उसका जो है वो बैचलर के बाद 7 इयर्स का गैप है ऑलमोस्ट, बट 7.5 आइल्स है, सारे जो है वो एक्सपीरियंस लेटर्स भी उसके पास हैं। तो क्या हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं मास्टर्स डिग्री के लिए सीसीपीयू? बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि उनके बैचलर डिग्री ऑनर है या 2 इयर्स की डिग्री ऑनर्स है, ऑनर्स है। ऑनर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है मास्टर स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करना 7 इयर्स का। आई मीन, आई हैव अ स्टूडेंट जिन्होंने 10 इयर्स का भी स्टडी गैप था, लेकिन रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो उनको वो सपोर्ट करता है उनको एप्लीकेशन में। श्योर, ठीक है। और एक और चीज मुझे बताइएगा कि कैश के लिए कितना इनिशियल डिपॉजिट चाहिए होता है? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। हम जो डिपॉजिट के लिए चार्ज करते हैं दैट इज 5000। ओके, कैश के लिए जी ठीक है। Sorry, but there's another question. We have a student for undergraduate program, but उसके पास PTE है. The overall score is 52 actually. बिल्कुल पीटी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। पीटी की अगर फी है 15 and not less than 42, वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं जी। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच जी। और उनके चेक करें कि मार्क्स क्या हैं उसमें हायर सेकेंडरी स्कूल में। There were 60, more than 60%. If he has more than 60%, तो हम उसको कंबाइन कैश दे देंगे जो कि डिग्री प्लस 4 इयर्स का हो जाएगा, राइट? जैसे मैं मेंशन किया, अगर इनका अगर 70% होते तो हम उसको हम डायरेक्ट एंट्री दे सकते थे बैचलर के लिए। सो 60-65 तो हम उनको कंबाइन कैश 4 इयर्स का इशू कर देंगे। Okay, that's great. Thank you. I have a question for you. एसोसिएट डिग्री अगर 2 इयर्स का है किसी स्टूडेंट्स के पास, और उसका कितना मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए कि उसका एडमिशन हो सके आपकी यूनिवर्सिटी में? मैं मिनिमम किस लिए बात कर रहा हूँ कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि 50% या सम टाइम बिलो भी होते हैं। तो क्या इज देयर एनी चांस टू गेट द एडमिशन इन योर यूनिवर्सिटी इन दीज सर्कमस्टेंसेस? रहील, ये क्वेश्चन आपने मैं स्किप कर गया, आपने बहुत अच्छा किया, इसको याद करवाया। जो क्योंकि जिन्होंने बीए किया होता है या बीकॉम किया होता है उन स्टूडेंट्स ने, तो क्योंकि वो एलिजिबल होते हैं बैचलर डिग्री के लिए, लेकिन क्योंकि उनके मार्क्स कम होते हैं, जैसे 50 होते हैं तो 48 होते हैं, तो उसमें उनको होता ये कि जो हमारी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, अगर उन्होंने बैचलर डिग्री 2 इयर्स का किया, जैसे बीए किया, तो कम से कम सेकंड क्लास डिग्री होनी चाहिए उनके पास। 60% तक मार्क्स होने जाएंगे तो वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं बैचलर डिग्री में। अगर नहीं होते तो देन हमें उनको फाउंडेशन के साथ भिजवाना पड़ता है।
अच्छा, क्वेश्चन इसमें फाउंडेशन पे जो आप कह रहे हैं कि फाउंडेशन में यूजुअली हम जानते हैं कि ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। फॉर जी एग्जांपल 2021 में हम वी आर स्टैंडिंग एट द मोमेंट, और 2017 या 16 में अगर किसी ने एसोसिएट डिग्री किया है और उसकी यही परसेंटेज है, सो व्हाट वुड बी द पाथवे फॉर द स्टूडेंट टू गो अब्रॉड, और आपकी यूनिवर्सिटी में किस तरह से एडमिशन मिल सकता है? इज इट पॉसिबल? सर, द बैचलर डिग्री के लिए कम से कम स्टडी गैप वो 3 इयर्स का स्टूडेंट का होना चाहिए। कुछ केस बाय केस यूनिवर्सिटी उनको दे सकती है, 4 इयर्स का भी होता है। तो उन स्टूडेंट्स को हमें केस बाय केस देखना पड़ेगा, क्या वो यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर सकती है उनको या नहीं है, उनके जो डॉक्यूमेंटेशन या एक्सपीरियंस है उसमें हेल्प किया जा सकता है। तो यूनिवर्सिटी को उसके असेसमेंट हम करवा लेते हैं और देन यूनिवर्सिटी हमें गाइड कर देती है कि हम उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चांसेस यही होते हैं, जिनका 3 ईयर का स्टडी गैप होता है वो अप्लाई कर सकते हैं। 4 इयर्स का जस्टिफाई करना वीजा के लिए इज आल्सो इज नाउ डिफिकल्ट। वो जो पहले था आपको पता ही है, तो वो 4 इयर्स में बहुत डिफिकल्टीज आ जाती है उनके लिए। यू आर म्यूटेड सर। Rahil, you are muted. Can you please unmute? सॉरी एक्चुअली मेरा जो एक मेन कंसर्न था वो फाउंडेशन कोर्स के हवाले से था। जैसे आपने कहा कि फाउंडेशन कोर्स के थ्रू वो मूव फॉरवर्ड हो सकते हैं, तो फाउंडेशन में जनरली हमारे पास गैप नहीं होना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके परसेंटेज कम है और आप उनको फाउंडेशन रिक्वायर्ड कर रहे हैं, तो उनका गैप कितना होना चाहिए ताकि वो फाउंडेशन के लिए भी एलिजिबल हो सके फॉर द बैचलर्स? ये थोड़ा सा मुझे डिटेल चाहिए। देखिए, हमारे पास जितने प्रोग्राम्स हैं 3 इयर्स का स्टडी गैप हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इनको वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा शायद मुझे ये बताइएगा कि जो जॉइंट कैस्ट के लिए अगर 52% है स्टूडेंट का या 55% तक है, तो उसको भी हम जॉइंट कैस्ट के लिए उसको प्रोसेस कर सकते हैं विद पीटीई? जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, हमने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी लिए हैं जिनके 47-48% मार्क्स थे, लेकिन उनका आइल्स अच्छा था। जैसे कि एक स्टूडेंट मेरे पास अभी एप्लीकेशन है, उसका 47% मार्क्स हैं, लेकिन उनका आइल्स 6 इन इंग्लिश में 4.5 है। तो यूनिवर्सिटी ने इसको कंबाइंड कैस्ट 4 इयर्स का दे दिया। तो स्टूडेंट का जो प्रोफिशिएंसी है वो मैटर करती है। ओके, जी थैंक यू। Akhil जो है ना, will be writing his questions in the comments, तो आप वहाँ पे देख के उसको जवाब दे दीजिए। और सर, मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा। टेक्निकल रीजन की वजह से वो आपको ऑनलाइन ही नजर आ रहे हैं, बट ही इज विद अस। राइट सर, ओके। काउंसलर किसी और के भी क्वेश्चन सवाल से तो आप जो है वो आंसर कर दें। जी। एक स्टूडेंट की हमने क्वेश्चन किया है कि आफ्टर डीए मिनिमम परसेंटेज फॉर डायरेक्ट एंट्री दैट इज 65%। अब मैम ने आपको बता दिया। तो जी, ये स्कॉलरशिप आकाश, हमारी स्कॉलरशिप ऑलरेडी बहुत ही नॉमिनल फी है। हमने डिस्काउंटेड फीस जैसे मेंशन किया है वो हमारी है। अगर आप कंपैरिजन करते हैं अदर यूनिवर्सिटीज का, तो दैट इज स्टार्टिंग 17,000 18,000, और फाउंडेशन की फीस 32,000 से स्टार्ट होती हैं। तो हमारी जो फी है वही बहुत ही नॉमिनल ऑलरेडी। तो हाँ, अगर प्रोग्रेस अगर आप अच्छा करते हैं यूनिवर्सिटी में, आप पढ़ते हैं, जीपी अच्छा करते हैं, तो यूनिवर्सिटी और आपको स्कॉलरशिप दे सकती है। लेकिन फॉर द राइट नाउ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी डिस्काउंटेड फीसेस हैं। राइट। और इसके अलावा क्वेश्चन ये अभी आपने किसका आंसर किया है? ये सर आकाश का है। और आइल्स रिक्वायर्ड और नॉट वो आपने बता दिया। शकील, डुओलिंगो एक्सेप्टेबल है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आपने कहा नहीं एक्सेप्टेबल है। नो सर, पीटी एक्सेप्टेबल है। यहाँ स्टूडेंट हमारा पासवर्ड टेस्ट दे सकता है, पासवर्ड स्किल्स टेस्ट। I think then Anam asked a question for scholarship. Sir, I have already answered this question. Very nominal fee है, बहुत अट्रैक्टिव फी है। अगर अच्छा प्रोग्रेस करते हैं तो यूनिवर्सिटी, मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पे कुछ स्टूडेंट्स थे जो सितंबर में और जनवरी में गए, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जीपीए मेंटेन किया। यूनिवर्सिटी ने 2,500 की उनको और एडिशनल स्कॉलरशिप दे दी। तो डिपेंड स्टूडेंट्स के जीपीए पे करता है कि किस तरह मेंटेन करते हैं अपना जीपीए। Undergraduate direct entry fee for cash letter. तो कैश डिपॉजिट का रिक्वायर्ड है फॉर डायरेक्ट एंट्री सर 5,000। एक अच्छी चीज़ है कि हमारी इंटरनेशनल फाउंडेशन हो या डिग्री हो, दैट इज
डिपॉजिट दैट इज अ 5,000. लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें स्टूडेंट्स कहते हैं हम ज्यादा करना चाहते हैं ताकि बैंक स्टेटमेंट हम उसको कर सकें, तो वो डिपॉजिट ज्यादा भी करवा सकते हैं. Then we have a question: postgraduate program with work placement. Is there any option? सर जैसे मैंने मेंशन किया कि हमारे प्रोग्राम्स में जैसे कि यूके ऑलरेडी 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क दे रहा है, तो हमारे पास वर्क प्लेसमेंट नहीं है मास्टर प्रोग्राम्स में, लेकिन क्योंकि जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं या एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, तो उनमें हम ऑलरेडी बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उसमें ऑलरेडी इंटर्नशिप्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है उनको ऑलरेडी, तो प्लेसमेंट नहीं है सर उसमें. Placements. What is your next question? After, can I apply for a bachelor's degree after FSC? ये तो आपने वगैरह इसका, you've already answered that, but if you could explain it again. Yes, you can apply. You can apply if you have a good marks, 70% marks in FSC. You can apply for the direct entry for the bachelor degree. अगर आपके कम हैं, लो मार्क्स हैं, तो देन आपको ऑप्शन है, आप अप्लाई कर सकते हैं फाउंडेशन के साथ. सो काइंडली डॉक्यूमेंट्स आप फॉरवर्ड करें KBM टीम को, तो वो असेसमेंट करवा लेगी आपसे, हमसे. Thank you. After DAE, minimum percentage for direct bachelor. 65% marks. Scholarship you already told, work placement for master student. Zarar Khattak, sir, what is the procedure, sir? Any scholarship? मतलब पहले भी repeat हो चुका है question. What GPA required for MS electrical engineering? ज़रार, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन. ज़रार, हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मास्टर में नहीं है, हमारे पास MSc एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है विद रोबोटिक्स, उसमें आप कर सकते हैं अप्लाई. उसमें जो हमारी फ़ी है, एक्चुअली तो हमारी जो फ़ी है दैट इज़ 14,950 पाउंड, बट राइट नाउ हमने इसको डिस्काउंटेड करके 30,000 किया हुआ है, तो फ़ी हमारी जो है दैट इज़ 13,000 फॉर द होल 1 ईयर प्रोग्राम. Sure, sir. I have a question. प्री सेशनल इंग्लिश जो है वो हम कब ऑफर कर सकते हैं? इधर दे आर गोइंग टू स्टार्ट इन सितंबर, और कोर्स स्टार्ट होने से पहले ही जो 6 या आपने 10 वीक्स का मेंशन किया, वो उससे पहले होंगे, लाइक जुलाई में होंगे या सितंबर में होंगे? ये दैट्स आई वांट टू नो. राइट. रहील, क्योंकि हमारे पास 10 वीक्स का जो प्री सेशन है वो जून में स्टार्ट हो रहा है और 7 जून को स्टार्ट हो चुका है 10 वीक्स का, तो अभी राइट नो जो अवेलेबिलिटी है दैट इज 6 वीक्स. जो कि अगस्त में क्लासेस स्टार्ट होगी, तो ये प्रोग्राम डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि वो मेन प्रोग्राम से पहले प्री सेशन पढ़ सकें और कंप्लीट कर सकें उस डिग्री को, और अपना लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें. तो अगस्त में प्री सेशन की क्लासेस है 6 वीक्स की, वो पास करेंगे, तो देन सितंबर में 27 सितंबर हमारी क्लासेस स्टार्ट है, जो कि मेन प्रोग्राम किया UG हो या PG हो, तो वो देन वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं. राइट. इसका मतलब है कि जो मेन प्रोग्राम है उनका, चाहे बैचलर्स हो चाहे मास्टर्स हो, वो उनका सितंबर में ही स्टार्ट होगा. प्री सेशन जो इंग्लिश है प्रोग्राम, वो उसके लिए उससे पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. राइट. जी बिल्कुल. लास्ट डेट क्या है टू अप्लाई? मतलब आई थिंक इट शुड बी सूनर द बेटर. The sooner is the better, sir, because we are as for them. लेकिन अभी डेडलाइन आई नहीं है, और होपफुली मिड ऑफ जुलाई विल बी द डेडलाइन. जी, लेकिन उसमें आई विल ऐड हियर कि आप स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं, जो आगे देखेंगे, और काउंसलर्स के लिए भी एडवाइस है कि आगे फिर जाके प्रेशर एडमिशन का भी बन जाता है और एम्बेसी का भी बन जाता है. बिल्कुल. ऑल हैव बीन थ्रू हेल इन जनवरी, तो वो ये अपॉइंटमेंट्स का बहुत बड़ा इशू आएगा और वो फिर बॉटलनेक बन जाएगी. तो हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे अपने स्टूडेंट्स को कि जो भी कैंटरबरी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि फिर उनके पास वॉल्यूम बहुत होता है एप्लीकेशंस का. एप्लीकेशन टू कैश काफ़ी लंबा टाइम है, फिर एम्बेसी के अपॉइंटमेंट, फिर TB टेस्ट, तो ये सब एक लेंथी प्रोसेस है. तो जितनी जल्दी स्टूडेंट शुरू कर लेंगे उतना ही बेहतर और आसान हो जाएगा इस सारी चीज़ को प्रोसेस करने. और आपका वैसे स्टैंडर्ड टर्न अराउंड टाइम क्या है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम ऑफर टू? आई नो यू कांट गारंटी दैट, बट क्या है आपका वैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग? सर देखिए, डिपेंड करता है स्टूडेंट के एप्लीकेशन पे. अगर स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर देते हैं विद इन अ वीक, तो हम उसको 2 से 3 वीक्स के अंदर कंप्लीट कर देते हैं. जैसे मैंने मेंशन किया कि 48 आवर्स के अंदर एक कंडीशनल लेटर जो
वो हम इशू कर देते हैं स्टूडेंट को, ताकि जो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट कर सकें, जैसे कि स्टूडेंट के आइल्स मिसिंग है, या कोई रिकमेंडेशन लेटर मिसिंग है, या डिग्री सर्टिफिकेट मिसिंग है, या कंप्लीशन लेटर मिसिंग है, तो वो अरेंज कर लें, ताकि जैसे कंप्लीट हो तो हम आगे इसके आगे जो एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकें। Alright, good, great, thank you. इसमें शकील, do you have any face-to-face question or you are already done? अस्सलाम वालेकुम। ये दो क्वेश्चंस है। अच्छा फैसल, कैन यू हियर मी? या यस, आई कैन सी, आई कैन हियर यू। मुझे बताइएगा कि पासवर्ड इंग्लिश टेस्ट पे भी आप प्री सेशन देते हैं या पीटीए पे, या प्री सेशन यूके भी आईएल्टीएस पे अवेलेबल है? देखिए, एक एक्सपीरियंस बंदे ने जो क्वेश्चन किया वो बहुत वैलिड क्वेश्चन किया। स्किल्स बिल्कुल प्री सेशनल पासवर्ड टेस्ट पे अवेलेबल है, और मोस्टली क्योंकि आपको पता है कि आइल्स अगर 5.0 होता है, B2 लेवल से लो होता है, तो हमें यूके भी आइल्स चाहिए होता है, राइट। तो हमें फिर उसके लिए अगर आइल्स है तो यूके भी होना चाहिए, अगर पीटीई है तो पीटीई अगर 50 प्लस से लो है तो हमें पीटीई यूके भी हमें वो चाहिए होगा। Right? Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I think it was quite comprehensive and good session. और thank you Shoaib साहब for your time, wonderful presentation. और टीम पहले काम कर रही है एडमिशन और एप्लीकेशन, लेकिन इसके अलावा कोई सपोर्ट होगी तो फिर आपको जरूर गाय बगाए फन करते रहेंगे। Sure, sir. Presentation is already shared with the team and they are working on it. Right. So, दोबारा में एक सेशन आपके साथ जरूर रखेंगे। ठीक है जी। Sir, thank you so much. Thank you very much. Thank you team. All the best. Thank you. Thank you.